Hello, dear students. Welcome to the class today. So, children, we are carrying on with this chapter 2, Nationalism in India. In this first topic, we have completed a lot of important informations were there in the first topic. Now, we are carrying on with the second topic, which is talking about differing strands within the movement. Children, इसमें what we are studying right now, what we will be understanding is कि the Congress session that was taking place in the different parts of it has two sessions had happened. One had happened in Kolkata, one had happened in Nagpur. Final decision was taken in Nagpur. Okay, where the non-cooperation and Khilafat movement was launched, and the Indians were participating in it very enthusiastically. Non-cooperation and Khilafat movement that was there, please understand, non-cooperation and Khilafat started in, ये डेट याद रखिएगा, साथ में मिला के जो शुरू हुआ ना जनवरी 1921. नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत टुगेदर इट हैज स्टार्टेड इन जनवरी 1921. बहुत सारे देयर वर वेरियस सोशल ग्रुप्स हु वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट. सबका अपना अपना गोल था. Each of them had their own goal. Each of them were participating in their own manner. अपने तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे. एंड स्वराज की बात हुई. एवरीबडी वॉज रेस्पॉन्डिंग टू द कॉल ऑफ स्वराज, लेकिन द टर्म वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ठीक है, टर्म स्वराज का जो मतलब था ना, सो द टर्म स्वराज had different meaning to different people. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब आ रहा था निकल के. भाई एक्चुअली द पीपल हु आर स्टेइंग इन द सिटीज, उनका नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने का आइडिया अलग है. Their participation idea was different from the people who were living in the cities में. These people are participating. Now the people who are there, उनका participation mode was totally different. So this movement that was being carried on, the movement that was being carried on in the towns, it started movement that was happening in the towns. Please try to understand the movement in the towns. Actually, how did it start? Middle class participation was there in the cities, and thousands of because it started with a full force. पूरे फोर्स के साथ इन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया. एंड मूवमेंट स्टार्टेड with the middle class participation, with the middle class participation in the cities. Got it? अब क्या हुआ? Many students were there. They left the government controlled schools and colleges. Students का participation सबसे ज्यादा था. Many students left the
गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड schools, okay, and colleges. You know, this is what was written in the book written by Mahatma Gandhi, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में वो क्या कहना चाह रहे थे? हिंद स्वराज में वो यही कहना चाह रहे थे। He wanted to say the same thing in this book, हिंद स्वराज। He said कि आखिर स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स, दैट इज द ब्रिटिश स्कूल्स में कौन काम कर रहा था? इट वॉज कंट्रोल्ड बाय the teachers were Indians. Colleges में who were the professors? They were the Indians. Okay, so headmasters, teachers, they resigned, and lawyers gave up their legal practice. Headmasters and teachers resigned, and क्योंकि अभी सबने रिजाइन करना शुरू कर दिया, सब कोई, एवरीबडी वाज गेटिंग इंस्पायर्ड। लॉयर्स gave up their practice in court. कोर्ट जो जाते थे लॉयर्स ना, इट वॉज ऑल ब्रिटिश कोर्ट ना, इट वॉज ऑल ब्रिटिश कोर्ट, लॉयर्स वेयर ऑल ब्रिटिश। तो सब कुछ जो भी हो रहा था वो ब्रिटिश रूल्स के हिसाब से हो रहा था, ब्रिटिश आइडियाज के हिसाब से हो रहा था। सो द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बॉयकॉटेड, इलेक्शंस होने वाले थे, so these elections were also boycotted, and the council elections were boycotted in most of the provinces. Council elections were boycotted in most provinces. ज्यादातर जगहों पे इलेक्शंस को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। कहां पे क्या हुआ कि मद्रास में देयर वाज अ जस्टिस पार्टी विच वॉज अ नॉन ब्राह्मण पार्टी। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट सिस्टम हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ मेजर कैटेगरी ऑफ पीपल। काफी सारे लोग थे जो कि कास्ट सिस्टम से बहुत परेशान थे, सताए हुए थे, जताए हुए थे, परेशान थे। तो दिस कास्ट सिस्टम दैट वाज बीइंग फॉलोड, इस कास्ट सिस्टम को जो लोग फॉलो कर रहे थे वो इस चीज से बहुत खुश थे कि दे आर गेटिंग अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। सो इन मद्रास, आज प्रेजेंट डे चेन्नई, जस्टिस पार्टी participated in elections. Okay. This was the time when the Justice Party, the party of the non-Brahmins, ये काउंसिल इलेक्शंस में एंटर करना चाह रहे थे। They wanted to gain some power. यूजुअली खाली ब्राह्मण्स के पास ही पावर होता था, बिकॉज फ्रॉम द ओल्डन टाइम्स दैट वाज देयर एक्सपीरियंस। इनका एक्सपीरियंस ये था दैट द ब्राह्मण्स हैव बीन ऑलवेज गेटिंग द पावर एवरीवेयर। तो अब क्या हुआ, व्हेन दे वर गेटिंग अ चांस फॉर पावर, अरे ये दिस वाज ऑल ब्राह्मण्स ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर गेटिंग पावर, बट दिस वाज अ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। हाँ, ऊंची जाति नीची जाति के लोगों को लड़वा दो, just make them fight with each other, वो आपस में लड़ते रहेंगे, मजा कौन लेगा? The Britishers will be having a nice time. Now what happened? Non-cooperation movement was felt on the economic front. सबसे ज्यादा पैसे का नुकसान हुआ। The effects of non-cooperation was felt on the economic front. टाउन्स में जो मूवमेंट चल रहा था उसमें people had boycotted. अभी boycott का कुछ तो असर होगा ना। People were not ready to use anything that was British.
तो आखिर ब्रिटिश जो अपना गुड्स इंडियन मार्केट में लाके डंप करते थे, ये सारा गुड्स कहाँ जाएगा? वेयर विल ऑल दीज गुड्स गो? सो इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन was felt in economic front. बहुत ज्यादा, it was very dramatic. Foreign goods were boycotted. आपको पता है, foreign goods, liquor shops and foreign cloth. People were burning the foreign clothes. ह्यूज bonfires, बड़े बड़े आग लगा देते थे और सारा कपड़ा ले जाके उसमें डंप कर देते थे. So the goods that were boycotted, liquor shops were picketed, foreign clothes were burned in huge bonfire. So अब आप समझो ये सारा नुकसान किसका हो रहा है? This was all the loss to the Britishers. Okay. Foreign clothes were boycotted. Liquor shops picketed. Okay. And foreign clothes were burned in huge bonfires. And foreign clothes were burnt in huge bonfires. अब क्या हुआ? The Britishers used to bring their goods. यहाँ से पहले तो कॉटन ले जाते थे. 8th क्लास में you might have read about the trading that happened by the Britishers, cotton trading जो हो रहा था. So import of foreign goods, foreign cloth halved between 1921 and 1922. Import, foreign के कपड़े कोई पहन ही नहीं रहा था. So import of cotton clothes, I'm sorry, not the cotton clothes, foreign clothes. Import of foreign clothes were halved, आधा हो गया पूरा, between 1921-22. अब शुरू हुआ ब्रिटिशर्स का दिल मिलाना. एक्चुअली ये सब चीज सह लेते थे. They were ready to accept everything except the economic loss. पैसे की मार जहां पड़ती थी ना, वहां ये बिल्कुल तिलमिला जाते थे, बिल्कुल परेशान हो जाते थे. 102 crore और वैल्यू क्या हो गया पहले, because nobody know, अब they are bringing it, they will not go and sell it in the shop ना. There are the shopkeepers who are buying the British goods and dumping it in the Indian market. Indian market में लाने वाले लोग भी तो Indians थे. They refused. They said कि आपके कपड़े कोई खरीद नहीं रहा है, तो why should we bring it to the market? They did not want to bring these goods to the Indian market. Okay, so import of foreign cloth halved between 1921-22, and value dropped from 102 crore to 57 crore. Please do remember these names. कहाँ 100 and drop from 102 crore to 57 crore, the import of cotton clothes. Import of foreign clothes. Now what happened? बहुत जगह पे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, दे रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स ना. कौन अपना नुकसान करेगा, कौन अपना पैसा फंसाएगा जब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है. सो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स refused to purchase
फॉरेन क्लोथ्स। ये टाइम था, नाउ इट वॉज अ गुड टाइम फॉर द इंडियंस। अब वो अपना सामान जो है वो इंडियन मार्केट्स में आराम से डंप कर सकते थे। नाउ दे कैन ब्रिंग देयर गुड्स, इंडियन गुड्स, बिकॉज इंडियन मार्केट्स वर टोटली फिनिश्ड। फॉरेन गुड्स कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, सो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू परचेज फॉरेन क्लोथ्स। So boycott movement spread, people began discarding imported clothes, wearing the Indian ones, production of Indian mills and handlooms went up. So production of Indian textile and cotton mills went up. पहले से फॉरेन गुड्स खरीदते थे ना, अब इंडियन गुड्स खरीदना शुरू कर दिया, तो अब फायदा जो है अपने भाई बंधुओं को हो रहा था। आवर कंट्री पीपल वेर गेटिंग बेनिफिटेड। लेकिन अभी देखो, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट द इंडियंस एनकाउंटर विद। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई कि जो मूवमेंट था सिटीज में, जो विच हैज स्प्रेड, इट स्लोड डाउन। ये दिस वाज द प्रॉब्लम विद द मूवमेंट्स दैट वर लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। Got it? Movement in the cities slowed down. अब ये जो सारा तेवर था ये धीरे धीरे खत्म होने लग गया, कम होने लग गया। इट वॉज कमिंग डाउन एंड बहुत सारे कारण हैं। why was it happening? Got it? Please understand this. सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट चली गई थी, सो आई हैव टू गेट बैक इन टू दिस मोड। आई वेटेड, थोड़ी देर मैंने वेट किया, बट देन इट वॉज टेकिंग टाइम, सो आई थॉट कि आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन दिस मोड ऑल्सो। हाँ, ऑफ कोर्स यू विल बी अंडरस्टैंडिंग and things would be more clear to you. One question that is asked here, very frequently asked question here, children, ki movement has gone slow in the cities में why did the movement get slow? Got it? इस चीज़ को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, when you are explaining it, तो इसमें lot of factors would be coming. काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको इसमें जो एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स के लिए इट्स अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सो इट्स वेरी क्लियरली गिवन इन दिस पैराग्राफ। इट स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, इन्हीं रीजंस को हमको एसेस करना है। खादी क्लॉथ वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्या होता है कि द लीडर्स हैव प्लान्ड अ बिग मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट तो प्लान कर लिया, बॉयकॉट करेंगे, स्कूल्स को बॉयकॉट करेंगे, कॉलेजेस को बॉयकॉट करेंगे, एवरीथिंग वुड बी कैरिड ऑन इन अ वेरी स्मूथ मैनर। बहुत अच्छे से सोच लिया, लेकिन बॉयकॉट करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट वाज द मेन लैगिंग पॉइंट? जिस जगह पे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी, दैट वाज द यूज ऑफ गुड्स ऑल्टरनेटिव। ठीक है, हम ब्रिटिश क्लॉथ नहीं पहनेंगे तो कौन सा कपड़ा पहनेंगे? आर आवर इंडियन गुड्स स्मार्ट एनफ टू compete द ब्रिटिश गुड्स? आर वी हैविंग प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ऑल द मटीरियल दैट इज देयर? क्या हर एक चीज़ जो हम बॉयकॉट कर रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट था? यही प्रॉब्लम थी। जस्ट सी हियर इट इज मेंशन, फर्स्ट पॉइंट इज दैट खादी क्लॉथ was very expensive and poor people could not afford to buy it. एक तो हाथ से बनता है,
दूसरा, मेनी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स वर नॉट देयर। बहुत सारी जगह पे खादी क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। तो अनदर मेजर पॉइंट, cloth, the British made clothes would be boycotted. So how can they boycott mill cloth for too long? British mills थी ना, all these cotton clothes that were there. And I would like to say here, the shirt that you are wearing, school shirt की बात कर रही हूँ, that is mill cloth। ठीक है, कितना सॉफ्ट कपड़ा होता है, आप सारे दिन पहन लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। एक दिन खादी की शर्ट पहना दूं मैं आपको, आई डोंट नो वेदर यू हैव यूज द खादी और नॉट, wear it, use it and see the difference. By evening you would be, I mean, very uncomfortable। काफ़ी वो कहते हैं ना खद्दर का कपड़ा, खादीज खद्दर का कपड़ा काफ़ी रफ होता है, इट्स वेरी रफ काइंड ऑफ अ क्लोथ, गॉट इट। सो एक तो क्लोथ का हो गया। सेकेंड पॉइंट इज हियर चिल्ड्रन, द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। A big problem was there, institutions में नहीं जाएंगे, alternative Indian institutions were to be set up। आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को नहीं भेजोगे, लेकिन फिर बच्चों को कब तक घर में बैठा के रखोगे? The parents who were very alert, who knew that they do not have to send their children to the British institutions, लेकिन उनको था कि बच्चों को पढ़ाना तो है ही, children have to be educated, so it was to slow down। And after that students and teachers began trickling back to government schools, lawyers भी फिर वापस जाने लगे। तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं होने के वजह से ये मूवमेंट जो है सिटीज़ में कम हो गया। अब वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। विलेजेस में क्या हो रहा था? विलेजेस का मोड बिल्कुल अलग था। द मोड दैट वॉज देयर इन विलेजेस वॉज वेरी डिफरेंट। इट इज़ लाइक everywhere the movement was spreading, and it was to the struggle of peasants and tribals was all involved in this movement। इस मूवमेंट में peasants का स्ट्रगल, ट्राइबल्स का स्ट्रगल, सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड था। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इट वाज डेवलपिंग दीज मोड्स। एंड अवध में हुआ सबसे ज़्यादा, बिकॉज पीजेंट्स जहाँ पे हैं, वेयर द फार्मर्स आर देयर, दे वेयर द वंस हु वेयर पार्टिसिपेटिंग एंथुजियास्टिकली, बहुत खुशी खुशी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज हु वेयर मैक्सिमम इनटू ट्रबल, सबसे ज़्यादा ये परेशान होते थे। जो कि पहले बाबा रामचंद्र ने ये मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है, सन्यासी जो कि फीजी में रहते थे एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। इंडेंचर्ड लेबरर इज जस्ट लाइक बंधुआ मजदूर। 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखते थे, कभी पैसे देते थे, नहीं देते थे। इफ द कॉन्ट्रैक्ट the person every time working in harsh conditions is very difficult। हमेशा बहुत टफ कंडीशंस में वर्क करना सबके बस की बात नहीं है। So when the people were put into these kind of situations, at time कभी कभी इनके सब्र का बांध टूट जाता था। तो they had in 2 years contract, they cannot leave it। अगर छोड़ेंगे तो उनको पकड़ के जेल में बंद कर देते थे। That was the indentured labor। बंधुआ मजदूर, आप बंधक के तरह काम कर रहे हैं, आपको फ्री होने का कोई भी उपाय नहीं है। There is no way to be free, okay? और they had to do begar। begar is mentioned here, just see, labor जहाँ पे कि villagers were forced to contribute without any payment। बेगार, ठीक है, काम आप करिए, आपको पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज नॉट नोन, ये कोई पक्का नहीं है, ओके। सो लैंडलॉर्ड के फार्म पे ये लोग काम करते थे विदाउट एनी पेमेंट। एंड टेनेंट्स ना, दे एज टेनेंट्स इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं था, देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कभी भी इनको बाहर भेज सकते थे, कभी भी काम से निकाल सकते थे। रेगुलरली दे वर बीइंग एविक्टेड। एविक्टेड मीन्स निकाल देना,
ओके, सो द लैंड दैट दे आर वर्किंग ऑन, कभी भी उस लैंड पे को वो अपना समझ के काम नहीं कर पाते थे. दे कुड नॉट वर्क ऑन दैट लैंड बाय कंसिडरिंग दैट लैंड एज देयर ओन लैंड. तो पीजेंट्स का प्रॉब्लम यह था. पीजेंट मूवमेंट में उन्होंने उनका डिमांड्स क्या था? व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द पीजेंट्स? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords. ठीक है, रेवेन्यू को कम करना है, बेगार को भी फिनिश करना है, एंड द लैंडलॉर्ड्स हु आर वेरी ओप्रेसिव, जो बहुत सता रहे हैं, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाना है. मेनी प्लेसेस में व्हाट हैपेंड ना, देयर वाज नाई एंड धोबी बंद. या नाई है एंड धोबी है, हु वेर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स के घर में जाके ही, अब भाई वो लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए, बाल काटने के लिए थोड़ी आएंगे. तो थोड़ी जाएंगे किसी दुकान पे. तो नाई और धोबी उनके घर जाते थे, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया. एंड पंचायत्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे सेड कि लैंडलॉर्ड्स को सर्विसेज ऑफ, दे विल नॉट इवन गेट द सर्विसेज ऑफ बार्बर्स एंड द वॉशरमैन. मतलब नाई और धोबी उनके घर में जाके काम नहीं करेंगे. June 1920, these all movements were going on in a very large manner, very big scale, very large scale. So June 1920 में जवाहरलाल नेहरू, he started going around the villages, जगह जगह वो जा रहे थे. He was talking to the villagers, he was trying to understand their grievances. इनकी problems को समझने की कोशिश कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, and trying to understand कि what is the problem with the farmers. एंड अक्टूबर में इन्होंने क्या किया? देयर वॉज दी, क्यों अवध किसान सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो पीजेंट्स थे ना, दे वेर द मोस्ट, आई मीन सबसे ज़्यादा सताए हुए थे, और कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं थी. नो बडी वॉज देयर टू लिसन टू. तो एक इन्होंने सभा बनाई, किसान सभा, where the peasants can come and talk about their problems. किसान आके अपना दुखड़ा रो सकते हैं, अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, अपने इश्यूज को लोगों के सामने बता सकते हैं. सो बाबा रामचंद्र वॉज देयर, फ्यू अदर वेयर देयर. विद इन ए मंथ क्या हुआ? 300 ब्रांचेस वेयर सेट अप इन द विलेजेस. ओके, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन टू द फॉलोइंग ईयर. आगे आने वाले टाइम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन, एंड कांग्रेस वॉज इंटीग्रेटिंग ऑल दी अवध पीजेंट्स. ठीक है, बड़े, इट वॉज टेकिंग अ वेरी वाइडर स्केल. मोर एंड मोर पीजेंट्स वेर गेटिंग इन्वॉल्व. पीजेंट मूवमेंट वॉज टेकिंग अ बिग फॉर्म, लेकिन कांग्रेस वॉज अनहैप्पी. यू नो कि जब महात्मा गांधी हैड सेड कि नॉन, इट इज नॉन वायलेंस मीन्स नॉन वायलेंस. गांधी जी वॉज वेरी एडमेंट ऑन दैट. ही सेड इफ यू वांट फ्रीडम, आपको आज़ादी चाहिए, तो आपको नॉन वायलेंस फॉलो करना है. लेकिन दे आर पीजेंट्स, वो बहुत सताए हुए थे, उनको बहुत तड़पाया गया था, पेशेंस खत्म हो गया था. ठीक है, द पेशेंस हैड गॉन, सब्र का सारा बांध टूट चुका था. सो देर वॉज नो अदर वे आउट, जिसमें कि हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वेयर अटैक्ड. तालुकदार्स और मर्चेंट्स के घरों पे इन्होंने आक्रमण किया, बाजार को लूटा, और वो जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, उनके घर में अनाजों की बोरियां रखी रहती थी, वो भी ये लूट के ले गए. They have looted all that. So this kind of an activity was not approved. And Gandhi ji said कि taxes नहीं देना, land was to be among the poor. जो गरीब लोग हैं उनके बीच में ये सारा लैंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना है. तो गांधी जी का नाम हर जगह लेके ये सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, एंड ऑल द एक्शंस एंड एस्पिरेशंस वेर गोइंग ऑन इन दिस मैनर ओनली. गॉट इट चिल्ड्रन? अब क्या हुआ कि 6 जनवरी को देयर वॉज पीजेंट्स का एक बहुत, देयर वॉज अ वायलेंट एक्टिविटी बाय द पीजेंट्स. रायबरेली में दिस इंसिडेंट हैड हैपेंड, जिसमें कि पुलिस हैड स्टॉप्ड महात्मा, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो एंड टॉक टू द पीजेंट्स,
नेहरू addressed the peasants. नेहरू ने फिर peasants से बात की who gathered around him. They behaved as brave men, calm and unruffled in the face of danger. And I know that my feelings were, for a moment, my blood, मेरे का खून खौल गया. वो कहते हैं ना, blood was up, means खून खौल गया. Non-violence was almost forgotten. लेकिन by God's goodness have been sent to lead us to victory. भगवान ने हमको जीतने के लिए भेजा है. हम जीत के रहेंगे. I needed the lesson more than they, and they dispersed. उन्होंने कहा अब आप वायलेंस मत कीजिएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी. उनको समझा के वापस भेज दिया गया. Got it, children? Yes. So this is what light चली गई, otherwise I would have carried on in that manner only. But I hope it is clear to you. In the next class, we will be knowing about a new mode of struggle by the tribals. Okay, children? Thank you.